تو آج جو داؤد کی لائف میں سکسیس تھا، اس کی ترقی جو تھی، اس کے متعلق ہم سیکھیں گے کہ اس کی ترقی کا راز کیا تھا۔ میرے ساتھ کلام خدا میں سے تواریخ کی پہلی کتاب ہے، نکالیے بائبل مقدس میں سے، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر، پرانے عہد نامہ میں تواریخ کی پہلی کتاب ہے، 11واں باب ہے اور 9ویں آیت مقدسہ، ورس 9۔ تواریخ کی پہلی کتاب 11واں باب اور اس کی 9ویں آیت مقدسہ کو ہم تلاوت کریں گے۔ آؤ کلام خدا میں سے سنیں۔ خدا کے کلام میں مرقوم ہے، اور داؤد ترقی پر ترقی کرتا اور گیا، داؤد ترقی پر ترقی کرتا گیا کیونکہ رب الافواج اس کے ساتھ تھا۔ کے ساتھ تھا۔ پاک کلام کے پڑھے، سنے، سمجھے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی برکت۔ سب کہیں آمین۔ بڑی خوبصورت آیت ہے۔ اور داؤد ترقی پر ترقی کرتا گیا، آگے وجہ بھی بتائی ہے، کیونکہ رب الافواج اس کے ساتھ تھا۔ ہلیلویہ۔ آج ہم سیکھیں گے داؤد کی ترقی کا راز کیا تھا۔ داؤد کی ترقی کا راز یہ نہیں تھا کہ موسیقار بڑا اچھا تھا، کہ یہ سمجھتے کہ شاید وہ گیت بڑے اچھے لکھتا تھا، شاعر بڑا اچھا تھا، میوزیشین بڑا اچھا تھا، پرستش بڑی اچھی کرتا تھا، آواز بڑی خوبصورت تھی۔ کئی لوگ یہ گمان کرتے ہیں نا جی میری آواز بڑی خوبصورت ہے، اس لیے میں بہت مشہور ہوں، اس لیے میں نے بڑی ترقی کی ہے۔ لیکن داؤد کی ترقی کا راز یہ نہیں تھا۔ آج چند ایک نکات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ داؤد وہ شخص ہے جس کے بارے میں کلام فرماتے ہیں کہ یہ شخص خدا نے کہا ہے اس کے بارے میں، خود خدا نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ میرے دل کے موافق ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے، مجھے بتائیں، دنیا میں بہت سارے ایوارڈ ہیں، دیکھیں نا، نوبل پرائز جو ہے، نوبل سویڈن کے اندر وہ دیا جاتا ہے، وہ بلڈنگ میں نے دیکھی ہوئی ہے یورپ میں، اور لاکھوں ڈالر اس شخص کو انعام بھی دیے جاتے ہیں جس کو نوبل پرائز دیا جاتا ہے، اور چند ایک لوگوں کو ملتا ہے، دنیا میں ہر شخص کے پاس نہیں ہے، بہت خاص لوگ ہیں، اور وہ اپنے آپ کو بڑا فیل کرتے ہیں کہ مجھے نوبل پرائز دیا گیا ہے، مجھے ایوارڈ دیا گیا ہے، یا کوئی اور بھی ایوارڈ دنیا میں ہے۔ آپ کی پاکستان میں صدارتی ایوارڈ ہوتا ہے جی، یہ فلاں ایوارڈ ہے، یہ فلاں ایوارڈ ہے، مختلف ممالک نے ان کو مختلف نام دیے ہوئے ہیں، اور اگر کسی کو مل جائے کہتا ہے یہ صدارتی ایوارڈ یافتہ ہے، لوگ بڑا پرائیڈ فیل کرتے ہیں۔ لیکن اگر خدا کسی کے بارے میں یہ بات کہے کہ یہ میرے دل کے موافق ہے، اس سے بڑا ایوارڈ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ داؤد کے لیے سب سے بہترین اعزاز کی بات یہ تھی کہ وہ خدا کو پسند تھا۔ اور آج صبح میں نے بتایا تھا کہ خدا نے یعقوب سے محبت رکھی اور عیساؤ سے عداوت، کیونکہ وہ بد نیت شخص تھا۔ خدا کا مقبول نظر ہونا، خدا کو پسند آنا، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ کئی دفعہ ہم لوگوں کو خوش کرتے رہتے ہیں۔ پالوس رسول خطوط میں لکھتے ہیں کہ اگر میں آدمیوں کو خوش کرتا ہوتا تو مسیح کا بندہ نہ کہلاتا۔ آج آپ غور کریں کہ ایماندار کس طریقے سے دنیا کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن داؤد کی جو فرسٹ پرائورٹی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اپنے خدا کو خوش کرتا تھا۔ پھر داؤد کے بارے میں نے دیکھا کہ داؤد نے بڑھاپے میں سرفرازی یا ترقی نہیں کی،
कई लोग सारी जिंदगी पिसते रहते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं, कुटते रहते हैं, और बिल आकर बुढ़ापे में जो दुनिया तो जानता उन्होंने टाइम होंदा उदो सरफराज हो जाते हैं। लेकिन दाऊद एक ऐसी शख्सियत और हस्ती है जिसको बुढ़ापे में सरफराजी नहीं मिली, जवानी में खुदा ने उसे सरफराज किया था, लड़कपन में, छोटा लड़का था। दाऊद की तरक्की का राज इसलिए वो तरक्की नहीं कर गया कि वो शायर, मौसीकार, परस्तार या जंगजू था, लड़ाका भी था ना, वॉरियर था, वो जाति जूलियत को मारा था उसने। ये नहीं था। दाऊद का जो सीक्रेट था वो खुदा के कदमों में बैठने वाला शख्स था, उसके कदमों में रहता था। आगे चलकर हम सीखेंगे कि दाऊद की हार्ट डिजायर क्या थी, दाऊद क्या मांगता था खुदा के हुजूर। हम क्या मांग रहे, ये भी हम गौर करेंगे। आज का ईमानदार क्या मांग रहा है, इस पर भी हम गौर करेंगे। लेकिन मैं आपकी खिदमत में जो आज पैगाम शेयर कर रहा हूं वो दाऊद की तरक्की के राज के मुतालिक शेयर कर रहा हूं। और मैंने पहले भी बताया था कि बाइबल का सबसे मशहूर आदमी दाऊद है। दाऊद की तरक्की का राज ज़बूर 51, साम 51 वर्स 10, ज़बूर 51 और उसकी 10वीं आयत। यह पहला नुक्ता है जो दाऊद की तरक्की की वजह था। दाऊद इसलिए सक्सेसफुल हुआ कि दाऊद ये मांगता था जो ज़बूर 51 और उसकी 10वीं आयत में लिखा है। ऐ खुदावंद, ऐ खुदावंद, मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातिन में असर नो मुस्तकीम रूह डाल। दाऊद, थैंक यू, दाऊद अपने लिए जो दुआ करता था वो पाक दिल के लिए दुआ करता था। मैंने इसे पेशतर भी बताया था कि कई लोग खूबसूरत नजर आना चाहते हैं लेकिन खुदा हमें पाक देखना चाहता है। कई लोग सिर्फ खूबसूरत नजर आना चाहते हैं कि यही सोने लगन दे हैं, बार बार शीशा जो वेखते हैं फिर भुल जाते हैं, फिर जाते हैं। शीशा देखने का मकसद तो की है, यही है ना, मैं किवें दा लगन दिया। लेकिन मैं आज आपको ये पैगाम देना चाहता हूं, ये सारी चीजें अच्छी हैं एक नुक्ता नजर से, लेकिन उससे भी एक लेवल अगला है कि आपका दिल पाक होना चाहिए, क्योंकि खुदा आपके जाहिर पर नहीं आपके बातिन पर निगाह करता है। वो आपका जाहिर नहीं, आउटलुक नहीं, वो आपका इनर देखता है। दाऊद का सीक्रेट था कि वो पाक दिल के साथ खुदा के साथ जिंदगी बसर करता था। दाऊद ये चीजें मांगता था खुदा से, इसलिए वो खुदा को पसंद था। मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर, पाक दिल, खुदा को देखेंगे क्योंकि वो पाक है। आज चर्च कलीसिया में पाकीज़गी का फुकदान है। कलीसिया और दुनिया एक ही नजर आ रही है। चर्च में आने वालों लोगों के रवैये, लिबास और काम वही हैं जो चर्च से बाहर लोग करते हैं। अफसोस, और चर्चेस में इस पर तालीम नहीं दी जाती कि चर्च कलीसिया जैसे दुनिया चलती वैसे नहीं, ये खुदा की जमात है, खुदा के पाक हैं, मुकद्दसीन लोग हैं, इनको खुदा ने अपने लिए अलग कर लिया हुआ है। लेकिन चर्च को समझ ही नहीं आ रही। लोग उस गिरजे जाते जिथे खुली छुट्टी है, कौड़ी दवाई भी पियो है, कपड़े भी जिवें दे मर्जी पाओ, बल्कि तो आजकल तो पास्टरां दे कपड़े बड़े हैरान कुन है।
माइकल जैक्सन अर्गे, स्पाइडरमैन, हाँ जी, हैरान कुन कपड़े हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। भाई आसफ उनके लिए फैंसी पास्टर इस्तेमाल करते हैं कि ऐसे पास्टर फैंसी पास्टर हैं। उनके लिबास, उनका लाइफस्टाइल, उन्हें परवाह नहीं किसी की। क्यों परवाह नहीं है आपको? मैंने पहले भी बताया था कि हम एशिया के अंदर वेस्टर्न स्टाइल से लोगों की जिंदगियां नहीं बचा सकते। हम जो ईस्टर्न खादम थे, साधु सुंदर सिंह और भाई भगत सिंह और दीगर जितने हमारे बुजुर्ग बड़े बड़े खादम पाकिस्तान से भी हुए हैं, हम उनकी लाइफस्टाइल से, उनकी तर्ज जिंदगी को अगर अपनाएंगे तो फिर डेफिनेटली हम यहां पर लोगों को बचा सकते हैं। आज का चर्च पाकिज़गी को ऐसे जैसे उसने भुला ही दिया है। ठीक है, चर्चिस के अंदर कोई इस पर बात नहीं की जाती। ज़ाहिरी और बातनी दोनों तरह की पाकिज़गी बहुत जरूरी है, लाज़मी है। आपकी गुफ्तगू अच्छी है, यह भी पाकिज़गी की एक अलामत है। यह भी उसका हिस्सा है कि आप पाक गुफ्तगू करते हैं, मुनासिब गुफ्तगू करते हैं, आपके अल्फाज बड़े खूबसूरत होते हैं। ये नहीं कि जो मर्जी कहने जो। मुझे याद है, मुझे कोई बता रहा था कि डॉक्टर हिस्किल सरोज कहते हैं, ईमानदार ना तो कैजुअल कपड़े पावे ते ना कैजुअल गुफ्तगू करे। कैजुअल समझते ना, एवं ऊट पटांग जे कपड़े जड़े होंगे ने पा के तुसी तुरे फिरदे हो। और खास तौर पर उन्होंने पास्टर्स के लिए ये बात कही है कि पास्टर का लिबास जो है वो कैजुअल नहीं होना चाहिए, ना उसका लिबास कैजुअल होना चाहिए और ना उसकी गुफ्तगू कैजुअल होनी चाहिए कि जिवें एवं बेढंगियां गल्लां करी जा रहे हैं। खुदा हमें पाक देखना चाहता है। दाऊद कहता है मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर। उसने ये नहीं कहा मुझे शोहरत दे, मुझे दौलत दे, मुझे गाड़ी दे, मुझे टीवी चैनल दे दे ताकि मैं मशहूर बहुता हो जाऊं। आजकल आई तो स्यापा पिया होया है, वो जिन्हों मर्जी वेलों टीवी चैनल खोली जा रहा है। ये मैंने लगता CNG तरह बंद ही होने ने मुड़ के, जिवें PCO खुले सी तो खुली जा रहे सन हैं, सारे ने PCO बना ले, PCO ही मुक गए। वो CNG पूरे पाकिस्तान की गैस मुकाती फड़ के इन्होंने। लोग बेचारे चूल्हे जलाते सी, वो भी बंद हो गए। एक दूसरे ने वेख के लगे हुए करी जा रहे। ते चेयरमैन बनने का बड़ा शौक, इतने मैं बड़ा गौर कर रहा था। जे सारे चेयरमैन बन गए तो कलीसिया कौन होएगी दसो भला? तो जे सारे पादरी बन गए तो कलीसिया केड़ी होएगी? एक भी बड़ा स्यापा पिया हुआ है कि पास्टर ही बनी जा रहे, पास्टर ही बनी जा रहे। वो थले बहना किसी को पसंद ही नहीं, सारे कहते चेयरमैन ही बनना, चेयर ते बहना। दूसरी बात, ज़बूर 143, साम 43, 143 साम, उसकी 10वीं आयत मुकद्दस, वर्स 10 आए देखें। दूसरा कामयाबी का जो कुलिया था उसके पास, दाऊद के पास, ज़बूर 143 10वीं आयत। मुझे सिखा कि तेरी मर्जी पर चलूं, ताकि तेरी मर्जी पर चलूं, इसलिए के तू मेरा खुदा है, तू मेरा खुदा है। तेरी नेक रूह मुझे रास्ते के मुल्क में आमीन ले चले। क्या कह रहे हैं? मुझे सिखा ताकि तेरी मर्जी पर चलूं। वाह, ये बात आपने यीशु मसीह की जुबान मुबारक से भी बारहा सुनी है पाक कलाम में, कि मैं अपनी नहीं बल्कि बाप की मर्जी को पूरा करने आया। मैं वो नहीं कहता, जो कुछ भी कहता हूं वो सब बाप से सुनता हूं फिर कहता हूं। दाऊद की दूसरी जो की थी उसके पास, सक्सेस की, कामयाबी का राज था, वो खुदा की मर्जी थी उसकी जिंदगी में, विल ऑफ गॉड। जैसे मैंने कहा कि हम एली काहे ने क्या कहा था सैमुअल को, जब उसे पता नहीं चल रहा था कि खुदा हम कलाम हो रहा है, तो वो भागकर एली के पास आ जाता। एली ने कहा खुदा तुझसे कलाम कर रहा है, और अब अगर तू उस आवाज को सुने तो कहना फरमा तेरा बंदा
सुनता है। फरमा तेरा बंदा सुनता है। आज का ईमानदार, आज का पास्टर, आज का लीडर, आज की कलीसिया ये नहीं कहती फरमा खुदा तेरा बंदा तेरी बंदी सुनती है या सुनता है। आजकल दे ईमानदार कहते सुना है खुदा तेरा बंदा क्या फरमा रहा है। आज के ईमानदार, मैं हैरान होता हूं लोगों पर। उसने तो कहा ना अभी फरमा तेरा बंदा सुनता है। आज के ईमानदार, आज के पास्टर, आज की कलीसिया, आज के लोग ये नहीं कहते ए खुदा फरमा तेरा बंदा तेरी बंदी सुनती है, वो कहते सुन है खुदा तेरा बंदा क्या फरमा रहा है। अफसोस, दाऊद की कामयाबी का राज, उसका सीक्रेट जो था वो ये था कि वो खुदा की मर्जी को पूरा करता था। ये की थी। तीसरा राज, ज़बूर 143, Psalm 143, 5वीं आयते मुकद्दसा। तीसरा पॉइंट, ज़बूर 143, 5वीं आयते मुकद्दसा। जी, ध्यान से सुने। मैं गुज़श्ता ज़मानों को याद करता हूँ। क्या जी? दाऊद क्या कहते हैं? मैं गुज़श्ता ज़मानों को याद करता हूँ। मैं तेरे सब कामों पर गौर करता हूँ। वाह! मैं तेरे सब कामों पर गौर करता हूँ और तेरी दस्तकारी पर ध्यान करता हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं तेरे सब कामों पर गौर करता हूँ। यानी वो खुदा की मेहरबानियों को भूलता नहीं है, खुदा के कामों को भूल नहीं जाता। आज कितने लोग हैं, कितनी जल्दी आप भूल जाते। बनी इस्राएल भी ऐसे ही करते थे, फौरन ही भूल जाते सन कि खुदा ने की उन्होंने नल की था। उसकी कामयाबी का राज यह है कि खुदा ने जो कुछ उसकी जिंदगी में किया वो उसे भूलता नहीं था, उसे याद रखता था कि खुदा ने मुझे कहां से उठाया। हम तो भूल जाते हैं ना, मैं कहां से उठाया। पैदल, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, बहुत जल्द लोग भूल जाते हैं। मैं तो पैदल भी था। मुझे याद है जब मैंने पहली गाड़ी ली तो हमारे एक अजीज हैं, उन्होंने मुझे कहा कि भाई जी हुण तुसीं गड्डी ते आ गए हो तो पैदल चलने वाले का थोड़ा ख्याल रखियो। मुझे अच्छी लगी बात उनकी, क्योंकि देखा है ना कि जब कोई गड्डी आ जाए फिर जनाब गड्डी धूड़ा पुटदा है, पे नहीं वेखदा भी कोई बेचारा कपड़े पा के निकलिया पैदल जा रहा है। हम बहुत जल्द भूल जाते हैं कि खुदा ने हमें कहां से उठाया था, और बहुत जल्द हम खुदा की मेहरबानियों को भूलकर खुदा को नाराज करते हैं। माजी की फतुहात को वो याद करता था। हमें याद रखना है कि खुदा ने हमें कहां से उठाया। निजात का वक्त भी याद रखें। लिखा है कि हम कोई कौम ना थे, हमारी कोई पहचान ना थी। हम तो अपने कामों के सबब से दिल से दुश्मन और नफरत के लायक थे। क्यों भूल गए कि उसने हमें अपनी मेज पर बुलाया है, बिठाया है, खानदान में शामिल किया है। निजात के वक्त को याद करें। हम बहुत जल्द भूल जाते हैं। खुदा के कामों को याद रखें। और हम बगैर सोचे समझे खुदा के बड़े और अजीब कामों को बहुत जल्द भूल जाते हैं। फिर दाऊद का चौथा सीक्रेट, ज़बूर 141, Psalm 141 और उसकी तीसरी आयत। ये मेरा मनपसंद ज़बूर है और दुआ रोज़े की इबादत में मैं
इस ज़बूर को बहुत तरजीह देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम देखें दाऊद की लाइफ में जो चौथा सीक्रेट था कामयाबी का, वो क्या था। ऐ खुदावन मेरे मुंह पर पहरा बिठा, मेरे मुंह पर पहरा बिठा, मेरे लबों के दरवाजा मेरे लबों के दरवाजा की निगहबानी कर। शुक्रिया। बेतामिल बोलने वाले की जुबान तलवार है, तलवार दा की काम होता है। जिन लोगों की जुबान उनके कंट्रोल में नहीं है, जिनकी गुफ्तगू उनके कंट्रोल में नहीं है, वो तलवार का रोल अदा करते हैं, तलवार जैसा काम करते हैं, जो काटती है, जो छलनी करती है, जो घायल करती है, जो फाड़ती है लोगों को। आज कितने लोगों की जुबान बेसाख्ता, बगैर सोचे समझे वो गुफ्तगू करते हैं। आप देख लें, अपनी जिंदगी पर गौर कर लें, अपने इर्द गिर्द आप देखें क्या कुछ हो रहा है जुबान की वजह से। वो कहते हैं मेरे होंठों पर पहरा बिठा दे, कलाम का पहरा। कलाम निगहबान है, अगर कलाम की रोशनी में बोलेंगे तो कभी गलत नहीं बोलेंगे आप। अब कलाम की रोशनी में गुफ्तगू करेंगे, कभी तकब्बुर की बातें नहीं करेंगे आप, क्योंकि आपके होंठों पर पहरा बैठा हुआ है। कलाम ने कंट्रोल किया हुआ है आपको। कलाम से नावाकिफ होकर बेसाख्ता और आप बेलगाम हो जाते हैं और अजीब अजीब गुफ्तगू करते हैं आप। वल्गर टॉक, बेहुदा मजाक, बेहुदा ड्रामे, लोग मजे ले लेकर उसको सुनते हैं और देखते हैं, और वो फिर आपके कानों के जरिए से आपकी जिंदगी में, आप ज़हन में, दिल में उतर जाती हैं चीजें, फिर वो ऐसा ऐसा निकलती हैं। दाऊद जो चीजें मांग रहा है वो हम नहीं मांगते, इसलिए हम कामयाब नहीं हैं। हमने क्या पढ़ी थी मरकजी आयत? तवारीख की पहली किताब 11वें बाब की 9वीं आयत में लिखा है, और दाऊद तरक्की पर तरक्की करता गया। आमीन। दाऊद तरक्की पर तरक्की करता गया। ये जो तरक्की पर तरक्की है, इन बातों से होगी जो दाऊद ने अपनाई हुई थी। तो सीधे सिर्फ ये कहते ना बरबत बजांदा सी, उसकी बाकी बातों पर भी गौर करें कि जी पता नहीं वो बरबत की वजह से खुदा को पसंद आ गया, दाऊद इन बातों की वजह से खुदा को पसंद आया। दाऊद क्या मांग रहे हैं, हम क्या मांग रहे हैं, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, दाऊद की जिंदगी से सीखें। क्योंकि आज के ईमानदार को जरा समझ नहीं आ रही। प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल के बारे में भी मैंने बताया था। प्रॉस्पेरिटी प्रीचर, प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग, ये एंटी चर्च भी और एंटी क्राइस्ट भी है कि जो मर्जी करो खुदा तानू प्यार करता है। दैट्स राइट। God loves sinner but he hates sin. गुनहगारों से उसे मोहब्बत है, लेकिन गुनाह से वो नफरत करता है। और फिर जब हम उसकी जिंदगी का 5वां और आज के पैगाम में जो आखिरी नुक्ता है उसके सक्सेस का, वो देखते हैं, तो वो ज़बूर 62 में है, Psalm 62, और उसकी 8वीं आयते मुकद्दसा। ऐ लोगो हर वक्त उस पर तवक्कल करो। हाँ, ये नहीं लिखा कि ऐ लोगो कभी कभी उस पर तवक्कल करो। क्या लिखा है? ऐ लोगो हर वक्त उस पर तवक्कल करो। अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दो। खुदा हमारी पनाहगाह है।
یہ تھا سیکرٹ اس کی کامیابی کا کہ وہ ہر وقت خدا پر توکل کرتا تھا. ہر بات میں، ہر ایک سٹیپ پر لائف میں داؤد خدا پر توکل کرتا تھا. ایک اور حوالہ ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے. زبور 27 اور اس کی 4 آیت پڑھیے گا جی ذرا. داؤد کی خواہش کیا تھی؟ کیا سوچتا تھا؟ کیا مانگتا تھا وہ خدا سے؟ میں نے خداوند سے ایک درخواست کی ہے. کتنی درخواستیں کی تھیں؟ ایک. پھر پڑھو جی. میں نے خداوند سے ایک درخواست کی ہے. وہ پھر مجھے شعر یاد آ گیا، ہزاروں خواہشیں. غالب کا ہے یہ. غالب دے اندر ہزاروں خواہشاں نے، لیکن داؤد غالب ورگا شاعر نہیں سی، وہ دی کوئی خواہش سی. میں غور کر رہا تھا کہ داؤد غالب جیسا شاعر نہیں تھا جس کی ہزاروں خواہشیں تھی. داؤد کی ایک ہی خواہش ہے، اور وہ فرق خواہش ہے. جو دنیا کی خواہشیں ہیں وہ داؤد کی خواہش نہیں ہے. وہ کیا خواہش ہے جی؟ میں نے خداوند سے ایک درخواست کی. میں نے خداوند سے ایک درخواست کی. میں اسی کا طالب رہوں گا. میں اسی کا طالب رہوں گا کہ میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں. خداوند کے گھر میں رہوں. واہ. کتنے رہنا؟ خداوند کے گھر میں رہوں تاکہ خداوند کے جمال کو دیکھوں. خداوند کے جمال کو دیکھوں اور اس کی ہیکل میں استغفار کیا کروں. ہاں، کیا خواہش ہے اس کی؟ خداوند کے گھر میں رہوں. ہاں جی، ہاں جی. خداوند کے گھر میں رہوں عمر بھر. ایک ہی خواہش ہے اس کی. کتنی خواہشیں ہیں داؤد کی؟ جیسے میں نے کہا کہ غالب تو کہتا ہے ہزاروں خواہشیں ہیں، داؤد کہتا ہے ایک کوئی خواہش ہے. شاعر تھا نا داؤد بھی. داؤد کی ایک ہی خواہش تھی، اور وہ یہ تھی کہ میں خدا کی پریزنس میں رہوں. آپ کو پتا ہماری کڑواہٹ کیوں نہیں ختم ہوتی؟ ہم خدا کے قدموں میں وقت نہیں گزارتے. غصہ چھوٹی کڑواہٹ ہے. اگر کسی شخص کی زندگی میں غصہ پایا جاتا ہے، یہ بہت بڑی کڑواہٹ ہے. اس کی شخصیت کو برباد کر دیتا ہے غصہ. اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا، کلام میں لکھا ہے غصہ تو کرو مگر اس کی ایک لمٹ بتائی گئی ہے. اور اس میں لفظ ڈینجر زون میں نے استعمال کیا تھا کہ کئی لوگ ڈینجر زون کو چھو رہے ہوتے ہیں، وہ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں. داؤد کی ایک ہی خواہش ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں خدا کی حضوری میں، اس کے قدموں میں، اس کے گھر میں رہوں. آج کتنے لوگ ہیں جو چرچ خوشی کے ساتھ آتے ہیں، عبادت خوشی کے ساتھ؟ ہاں دکھا سکتے ہیں مجھے اپنے ہاتھ. جوڑے نہیں خوشی نہ آتے وہ بھی نہ اوپر تھلے رکھن، میں مجبور نہیں کر رہے. اوپر کر لو، ایویں تو ہے نا ٹنڈیا طرح نہ کرو، صحیح طرح اوپر دونوں ہاتھ لہرا سکتے ہیں آپ، تاکہ مجھے پتہ چل جائے آپ خوشی سے عبادت کے لیے آتے ہیں. آمین. اور یہ تو میں کنفرم کہاں گا کہ تسی واقعی خوشی والے ہو. اینی ٹھنڈ دے وچ وہی آندا جنوں خدا نہ محبت ہے، نہیں تو باقی تے رضائیاں نہ محبت کرن دے نے. اینی ٹھنڈ جو ہی آندا ہے جنہیں واقعی کشتیاں جلائیاں ہوئی ہیں، جنہاں دے دل روشن ہو چکے ہیں خدا دے پیار نال، جن پر خدا کی پہچان کا مکاشفہ کھل گیا ہے. یہ کام وہی کرتے ہیں، باقی نہیں، باقی اوکھا کام. عمر بھر خداوند کے گھر میں داؤد کی ایک ہی خواہش ہے. غالب کہتا ہے ہزاروں خواہشیں ہیں تو ساریاں غلط. وہ ٹائٹینک دا بھی میں دسیا سی نا کہ ایک ٹائٹینک خدا نے بنوایا سی نوح کولوں. کشتی بنائی تھی نا، بچے گیت گاتے ہیں، حضرت نوح نے کشتی بنائی. لوگوں نے اس کی، لوگ تو مذاق اڑا رہے سی کہ نہ بارش، نہ بادل، نہ طوفان، نہ ہوائیں، دھوپ نکلی ہوئی تھے. ایک ہی کر رہے نے بزرگ. ایک وہ کشتی تھی جو خدا کی مرضی سے بنائی گئی، اور اس میں راس باز سوار ہوئے تھے اور وہ بچ گئے تھے. ایک وہ کشتی جو برطانیہ کے تکبر سے بھرے ہوئے لوگوں نے بنائی تھی، ٹائٹینک. اور اس کا مطلب میں وہ
पढ़ रहा था मीडिया में कि देवता की मानिंद कौन, स्ट्रांग देवता, या ऐसा खुदा, ऐसा देवता, ऐसा मबूद जिसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता, जिसे कोई डिफीट नहीं कर सकता। वो गरक हो गए, पानी की तह के नीचे हैं, और जुड़े ਉਹਦਾ ਮਲਬਾ ਦੇਖਣਗੇ ਉਹ भी थल्ले ही रह गए बेचारे। अब गौर करें, एक वो कश्ती है जो खुदा की मर्जी के मुताबिक बनाई गई, उसमें लोग सवार हुए और वो बच गए थे, और टाइटैनिक में सवार होने वाले गर्क हो गए क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं थे। आज लोगों के अंदर जो ख्वाहिशें हैं वो खुदा की तरफ से नहीं है, उनकी अपनी ख्वाहिशें हैं, इसलिए वो बर्बाद हो रहे हैं। और दाऊद के बारे में हम पढ़ते हैं, और दाऊद तरक्की पर तरक्की करता गया। हालेलुया। तरक्की पर तरक्की, बरकत पर बरकत, फजल पर फजल, बरकतों पर बरकतें नाज़िल हो रही हैं उन लोगों की जिंदगी में जिनका दिल दाऊद जैसा है। उनको तड़पना और तरसना नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें खुदा की पहचान का मुकाशफा मिल गया है, और जो कुछ खुदा का है, जो उसके पैरों को आ रहे हैं, वो उनका भी है। दाऊद का ये सीक्रेट था। दाऊद तरक्की पर तरक्की करता गया। दाऊद खुदा को इसलिए नहीं पसंद आया, वो वॉरियर था, जंगजू था, नो, या साजिंदा था, या शायर था, या मौसीकार था, कंपोजिशन बड़ी अच्छी बनाता था, या सिंगर बहुत अच्छा था, गॉस्पल सिंगर्स जैसे आजकल हैं। खुदा का म्यार ये नहीं है, खुदा दिल पर निगाह करता है। दाऊद इसलिए खुदा को पसंद था क्योंकि दाऊद, उसके कदमों में रहना उसे अच्छा लगता था, उसकी हजूरी में रहना। ये दाऊद का सीक्रेट है। मैं आपके सामने ये सवाल रखना चाहता हूं कि क्या दाऊद का सीक्रेट आपका भी सीक्रेट है? ये राज आपको भी मिल गया है? वो कहता है, खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर। अपने आप से सवाल करें। वो कहता है, खुदा मैं तेरी मर्जी में चलना चाहता हूं।